Welcome guys. In this class we shall be talking about chapter number 6. Well, in chapter number 6 we shall be talking about angle curves and income offer curves. Along with that we will also be taking care of derivation of demand curves and derivation of price offer curves as well. आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों. सबसे पहले नॉर्मल गुड्स. वेल गाइस, अगर मैं नॉर्मल गुड की बात करूं तो नॉर्मल गुड तो मैं सिखाऊंगा ही आपको. मैं इसके साथ ही आपको सिखा देता हूँ कॉप डगलस फंक्शन. तो एक ही चीज़ दोनों काम कर देगी. तो कॉप डगलस फंक्शन के साथ मैं आपको सिखाऊंगा नॉर्मल गुड के केस में इनकम ऑफर कर्व और एंगल कर्व की डेरिवेशंस, एंड आई विल बी यूजिंग न्यूमेरिकल एज वेल. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द टॉपिक. सपोज गाइस वी गॉट अ यूटिलिटी फंक्शन जो मैंने चैप्टर 4 और 5 में भी आपके साथ शेयर किया था, कॉप डगलस नॉर्मल. Income say is 100, price of X is say 5 and price of Y say 10. So if I were to have a budget line here, I'll be solving it. So a budget line would have been 5x1 10x2 is equal to 100. I don't see any demons in that. Any problem, right? Now guys, if I were to have this optimal point, don't you think we did in chapter number 5 that in order to get an optimal point we have to have MRS is equal to P1 upon P2. MRS is MU of 1 upon MU of 2 is equal to P1 upon P2. Right guys? Now the catch is, what is MU of 1? We need to differentiate this whole thing with x1 and we'll be left with x2. And then we will be differentiating this whole thing with respect to x2 and we will be left with x1. As far as p1 and p2 is concerned, that I can write as 1 by 2. So I have x1 is equal to 2x2. Right guys? So far so good. Now आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. Well, I have this budget line. If you see, this is the budget line. So I'm just gonna put some values here. 5 into 2x2 plus 10x2 is equal to 100. 20x2 is equal to 100. x2 is 5. I think that makes sense. And x1 shall be 10. So these are the values, optimal values as they say. So I hope यहाँ तक तो पहले आपको सबको क्लियर है और फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसी में मैं आपको एक नई चीज़ भी सिखाऊंगा सॉल्व करने की, एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा. वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो भी अभी आपने बनाया उसको एक डायग्राम की शक्ल दे देता हूँ. दैट्स बजट लाइन. देयर वी टेक गुड 1 एंड देयर वी टेक व्हाट गुड 2. इफ यू गो बाय द डेटा 100 by 5, 100 by 10, that's gonna be 20, that's gonna be 10. Looks fine to me. Now optimal point shall be somewhere here. That's IC1 E1. Well, x1 is 10 and x2 is 5. So that's what I'm gonna do. 10 and 5. Looks cool, right? अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ ऑप्टिमलिटी निकालने का, और फिर इस चैप्टर में जो आपको मेनली सिखाया जाएगा वो बात करते हैं. वेल गाइस, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम और बना दूं यहाँ पर. हेयर आई एम टेकिंग गुड 1 एंड हेयर आई एम टेकिंग इनकम. इससे मैं कुछ आपको सिखाऊंगा अभी. तो गुड 10 है, इनकम 100 थी. गुड की क्वांटिटी दैट इज ये E1. ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए. अब ये जो आपने इक्विलिब्रियम निकाला था बच्चों, दिस वन, आपको इसको एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं ये. और ये जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा आगे के चैप्टर, स्पेशली चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स, ये बहुत हैंडी रहने वाला है. सो यू मेक श्योर यू गेट इट राइट. वेल गाइस, इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ आपके लिए. सो दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन. तो आप कैसे डिमांड फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं आपका ऑप्टिमल पॉइंट, दैट नीड्स टू बी सीन, एंड ब्यूटीफुल टॉपिक दिस इज. Well guys, again optimal point की condition MRS is equal to P1 by P2. Going by the utility function we have MRS this and P1 by P2 is this. So P2 x2 is equal to P1 x1, or x2 is equal to P1 x1 upon P2. I don't see any demons in this either. I guess it's quite clear. Yeah. So next step is, this is your budget lines equation, right?
So now you write this, replace x2 with this is equal to m, that gets cancelled. 2p1 x1 is equal to m and x1 is equal to m upon 2p1. My dear friends, this is called demand function for good fun. What significance does it possess? What is the purpose of this demand function? I shall be dealing with that pretty soon. Now मेरे प्यारे बच्चों, similarly you could have solved this demand function for x2 as well. It would have been like this. In that case I would have solved it with respect to x1, and this is what I would have got. So now the question is, why we are doing it? So what is the use of it? Oh, a magic coming your way. x1, what is the demand function? Sir, m upon 2p1. Great. What was your income? Sir, 100. What was the price of good one? Sir, 5. Really? Yeah. 5. So it's 10. Okay. What's the big deal? अभी बताते हैं. x2, m upon 2p2. Yeah. 100 income. Yeah. Price 10. Yeah. 5. Yes. What is that we are looking for? 10 and 5. Guys, this is the actual equilibrium quantity which we solved. There. So now we actually are telling you that you can solve your optimal conditions like this normal way or using a demand function as well. So totally your call. Cool? But this was just a different way of solving your optimal points. Now I'll teach you something else, something really, really nice. Now suppose in this example, this income rises to 150. This income rises to 150. What to do? आइए बताते हैं what we should be doing. Well, my dear friends, if income rises to 150, the budget line should shift rightwards. A1, B1. This should be what? 30. This should be 15. Cool? Here you will show income from 100 to 150. Cool? अब इसका असर क्या रहेगा? तो मैं दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ बच्चे. तो सबसे पहले ऑप्टिमल पॉइंट याद करो. ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ था? x2 upon x1 is equal to 1/2. Price are still same. x1 is equal to 2x2, right? Now the budget line was, or rather is, 5x1 plus 10x2 is equal to 150 because your income has increased. Replacing that here, 10x1 or rather x2 plus 10x2 is equal to 150 and x2 will be 7.5 and x1 will be 2 into 7.5. That is gonna be 15. If you want to use demand function, oh, no problems. x1, what was the demand function? M upon 2p1. 150 upon 2, right? Into 5. There you go. 15. What about x2? M upon 2p2. That was your demand function. Yeah. 2 into 10. What is 7.5? What is there? So you can solve it either through demand function or through normal way. I hope that makes sense. That is clear to you. Yeah. So एंगल कर्व. वेल अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ गुड वन से ही फोकस रहता है हमारा. गुड टू को बनाए ना बनाए हार्डली मैटर्स, बिकॉज नीचे वाले भी ना गुड वन के साथ आप इनकम को रिलेट कर रहे हैं. सो मैं इसी पे फोकस करूँगा अभी. दैट्स IC2 एंड दैट्स E2. माय डियर फ्रेंड्स, दिस कर्व जो आप ये ज्वाइन करके बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एंगल कर्व. कुछ टीचर्स इसको बोलते हैं एंजल कर्व. वेल साउथ एशियन लोग जो है उसको एंजल बोलते हैं, बट आप यूरोपियन अगर बोलेंगे तो वो लोग उसको एंगल बोलते हैं. तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी एंगल कर्व. सो व्हाट इज द एंगल कर्व देन? एंगल कर्व shows relation between income and demand. Angle curve shows the relationship between income and demand. What about this? Well, this is called income offer curve. Sometimes it is also known as income consumption curve. So income offer curve क्या show करता है? It is the locus of different equilibriums primarily, whereas angle curve shows relationship between income and demand. So this is normal good, Cobb-Douglas. This is how you can have an angle curve, income offer curve, and not only that, I have also shown you a demand function as well. क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ पर अब एक नोट बनाता हूँ आपके लिए जो आगे आपको काम आएगा बच्चा. नोट क्या है वो देखिए. इनकम बढ़ी बाय 50%. हाउ?
Well, from 100 to 150, right? Well, quantity of good one, yeah, quantity of good X has also risen by 50%. How? 10 to 15. Don't believe me? Okay. Don't believe me? देखिए सर, ये भी 50% बढ़ा है, यानी परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, राइट? कॉप डगलस में ऐसा हमेशा होगा। सर हम क्या करें, इसका हमें क्या यूज़ है? जस्ट राइट आफ्टर 20 मिनट्स और सो आपको इसका यूज़ भी दिखाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं जी हम इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आइए बात कर लेते हैं अबाउट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अगेन बेटा आई विल बी यूजिंग नंबर्स यूज़ करना हमेशा ही एक हैंडी चीज़ रहता है, समझाने में आसानी रहती है। So suppose the utility function here is min of x1 x2, 1 for 1 केस करा रहा हूँ, अदर देन 1 for 1 भी करा देंगे, नो प्रॉब्लम्स। सो आइए इस पर बात करते हैं बच्चों। सपोज इनकम इज 100, प्राइस ऑफ x2, प्राइस ऑफ y3, तो आपको ऑप्टिमलिटी निकालनी है। तो आपको तो मैंने तरीका सिखाया है, तो ऑप्टिमलिटी का दोबारा सिखाऊँ, कोई बात नहीं। बजट लाइन क्या बनेगी? 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 100, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में मैंने क्या सिखाया था, इसको बाहर ले आओ। x1 इज इक्वल टू x2, सो 2x1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 100, x1 इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x2 इज ऑल्सो इक्वल टू 20। ठीक है, सिखाया था यार, चैप्टर 4-5 में सिखाया था भाई, ऐसे मत कर। अब इसी को अगर डिमांड फंक्शन से सॉल्व करना हो तो बंदा क्या करे? तो कुछ नहीं, बंदा दिमाग लगाए। डिमांड फंक्शन देखो भाई, अब आपकी इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी यहाँ पर आपको लगानी है, किस प्रकार, वो जरा ध्यान दीजिए। वेल, जेनरिक इक्वेशन बजट लाइन की ये हमने लिखी। सिंस x1 इज इक्वल टू x2, तो आप लिखोगे p1 x1 प्लस p2 x1 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर x1 कॉमन आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू m अपॉन p1 प्लस p2। दैट इज गोना बी योर डिमांड फंक्शन। बच्चा कहता है विश्वास नहीं आ रहा, विश्वास भी आ जाएगा, ये लो भाई, विश्वास भी आ जाएगा। इनकम कितनी है? 100, p1 2, p2 3, क्या आया? 20, देयरफॉर x2 भी क्या आया? सर 20, तो विश्वास भी आ गया भाई। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द डिमांड फंक्शन। ये 1 for 1 केस है, अभी अदर देन 1 for 1 भी करा देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया। अब पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। वेल, ये बजट लाइन बनी 50, 33.3, ये ऑप्टिमल पॉइंट 20, 20, IC1 E1 20, इनकम अपन 100 ले रहे थे, E1। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर माइंडेड? गुड 1, गुड 2, गुड 1 इनकम। ठीक है बच्चों जी। अब अगेन सपोज ये इनकम बढ़कर 150 हो गई, तो पहला इम्पैक्ट ये तो अपन का हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50। यहाँ पर आप दिखा दो 150। तो अब ऑप्टिमलिटी पे क्या फ़र्क आएगा यार? सीधा डिमांड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं यार, शॉर्टकट करने देना यार, टाइम बचेगा भाई। x1 m कितना है? 150, 2 प्लस 3 कितना आया? 30, देयरफॉर x2 भी कितना आ जाएगा? 30। तो लेके ख़त्म करना मेरे दोस्त। ये हो गया IC2 E2, ये हो गया 30, 30, एंड दिस अगेन इज योर एंगल कर्व। एंगल कर्व किस में रिलेशन बता रहा है? एंगल कर्व शोज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब ये आ गया आपका वही इनकम ऑफर कर्व, किस में रिलेशन बताता है? सर इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। बिल्कुल सही। अब एक नोट लिख देते। नोट क्या है? नोट है कि यहाँ पर भी परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी गुड वन, क्वांटिटी ऑफ गुड वन। देखिए 100 से 150 अब 50%, अब 20 से 30 अगेन 50%। सर इसका यूज़ क्या, आप क्यों लिखवा रहे हो बार बार? ये सब्र, सब्र का फल बड़ा मीठा। अभी बताएंगे ऐसा क्यों लिखवाया। यहाँ तक क्लियर? चले आगे। आइए एक और केस करते हैं। अब सपोज हमें यूटिलिटी फंक्शन जो है वो दिया हुआ है मिन ऑफ 2x1 x2। ये कब होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में सारा सिखाया हुआ है, चैप्टर 5 वाले में, उसमें देख लो भाई आराम से, राइट। इनकम 100, प्राइस ऑफ x2, प्राइस ऑफ y3। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बजट लाइन क्या थी सर? 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 100। इसको बाहर ले आएंगे, 2x1 इज इक्वल टू x2,
अब 2x1 प्लस ये अपन का हो गया 6x1 इज इक्वल टू 100, 8x1 इज इक्वल टू 100, x1 इज इक्वल टू 12.5, x2 इज इक्वल टू 25, 2x1। अच्छा कई बारी बच्चे कहते हैं सर बड़ा जल्दी हो गया यार, आप करके सर हो भाई तेरे को एमए इकोनॉमिक्स के लिए तैयार करना है, जल्दी जल्दी दिमाग चलाएगा तभी तो बात बनेगी। अच्छा इसमें एक वेरिफिकेशन सिखाऊं तेरे को, चल वेरीफाई करते हैं यार। x1 कितने लिया सर 12.5, ओके था कितने का सर 2 रुपये का, कितने पैसे खर्च हुए 25। x2 कितने लिया सर 25, था कितने का सर 3 रुपये का, कितने पैसे खर्च हुए 75, टोटल कितने खर्चे हुए 100, इनकम कितनी थी 100, हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। ठीक है चल भाई आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसको डिमांड फंक्शन से करें, क्या बात करो सर इसको भी डिमांड फंक्शन से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। सो बजट लाइन क्या थी सर 2x1 प्लस px1 प्लस p2x2 इज इक्वल टू m, ठीक है, और फिर x2 क्या था 2x1, तो p1x1 प्लस इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2p2x1 इज इक्वल टू m, तो x1 क्या हुआ सर m अपॉन p1 प्लस 2p2। सर विश्वास नहीं हो रहा, अरे विश्वास भी कर देते हैं, ले 100, हाँ p1 कितना था 2, p2 कितना था 300 प्लस अपॉन 8 क्या आया 12.5, और सर आ गया, विश्वास आ गया ना। चल फिर सवाल बनाओ, चाहे डिमांड फंक्शन से कर ले चाहे ऐसे कर ले भाई, तेरी इच्छा, ठीक है। और इसमें भी अगर बनाना चाहते हो डायग्राम बना लो, पेपर में वैसे डायग्राम तुम्हारे आता नहीं है बट फिर भी कर लो यार। ये था हमारा कितना 12.5 और 25, हाँ ये यहाँ पर आ गए समवेयर है। इनकम सॉल्व बिल्कुल IC1 E1। चलो जी फिर बढ़ा देते इनकम बढ़ा के 150 कर दी। सर आप 150 ही क्यों करते हो, भाई तेरी मर्जी भाई, 200 कर लिया, हमारा क्या। ये हो गया 75, ये हो गया 50। अपन तो यार बस देखो डिमांड फंक्शन लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। m अपॉन p1 प्लस 2p2 था इस केस में, इनकम 150, 2 प्लस 2 इंटू 3, 150 डिवाइडेड बाई 8, यही आ गया ना। तो अब ये कितना हो गया यार 15, 16, 17, यार 18 पॉइंट समथिंग यार। आई एम नॉट दैट गुड विथ मैथ्स यार, भाई इसके लिए माफ़ कर दियो यार। ये हो गया IC2 E2 समवेयर 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है 8 लिख देता हूँ, आप बाकी सॉल्व करके देख लेना। ये हो गया आपका एंगल कर्व और ये हो गया आपका इनकम ऑफर कर्व। सो भाई 1 for 1 केस करना है, 1 for 1 केस कर लो, ये रहा। 1 for 1 पसंद नहीं है, अदर देन 1 for 1 करना है तो कर लो भाई, ये रहा, नो प्रॉब्लम्स, ये लो, ठीक है। अब इसमें भी तू देख ले भाई, इनकम का चेंज वही 50% ही होगा, जैसे इनकम 50% चेंज, ये भी 50% चेंज होगा, ठीक है। समवेयर 18 पॉइंट प्रिसाइजली 75 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। सो अब आगे बढ़ते हैं जी। चलिए बेटा अब बात करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की। तो आइए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में हम क्या कर सकते हैं और इसके अंदर कैसे एंगल का वगैरह की बात होगी, अब वो देख लेते हैं मेरे बच्चों। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, वेल अगेन मैं फंक्शन के साथ करूँगा। पहला तो 1 for 1 ले लेता हूँ बेटा, x1 प्लस x2। जिनको भी इसमें दिक्कतें हो ना फंक्शंस में, वो मेरा पिछले चैप्टर 5 का वीडियोस देके आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज इनकम है 100, प्राइस ऑफ 1 है सपोज 2, प्राइस ऑफ 2 है सपोज 5। अच्छा मैंने जब आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की ऑप्टिमलिटी कराई थी पिछले चैप्टर 5 में, तो मैंने कराई ही डिमांड फंक्शन अप्रोच से थी। तो यहाँ पे कोई अलग अप्रोच है ही नहीं, सेम एक ही अप्रोच है जो 5 में भी लगाई थी और यहाँ पे भी लगाई है। वो क्या थी मैं दोबारा याद करा देता हूँ। हम देखते थे कि खाली अगर गुड 1 लेना है बंदे ने तो कितना आता उसके पास, यहाँ आता 50 यूनिट्स। खाली गुड 2 लेना है तो कितना आता जी 20 यूनिट्स। परफेक्ट। तो अब यूटिलिटी फंक्शन में वैल्यू डाल के देखते थे हम, अगर खाली गुड 1 लेते हैं हम
तो कितने यूनिट्स मिलते हैं, वैल्यू मिलती है 50। खाली गुड 2 डालें, गुड 1 बिल्कुल 0, तो कितनी मिलेगी 20। तो आप बताइए, इफ़ यू वर टू बी दिस कंज्यूमर, कौन सा गुड लोगे? सर गुड 1, तो लो ना भाई, बाउंड्री ऑप्टिमम, राइट। तो अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करें हम, आइए बताते हैं, इसी पेज में कर लेते हैं। ये आपकी बजट लाइन 50 और 20, ठीक है, यहाँ तक तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और ये आपका 50, क्योंकि आपका ऑप्टिमल पॉइंट ही यहीं पर आ रहा है। तो यू हैव योर इनकम 100, दिस अगेन इज गुड 1, दिस अगेन इज गुड 1, गुड 2, दैट्स इनकम, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये आपका बाउंड्री ऑप्टिमम में यही आ गए। बच्चा कहता है आईसी बना दो, बिल्कुल बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 for 1 का केस है भैया, तो आईसी ऐसे बनते हैं इसके, आप लोग ध्यान लगाएं, 20 20 50 50, ठीक है जी, कूल। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इनकम बढ़कर से 120 हो गई, तो अब क्या करते? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी दिखा देता हूँ आधा। इनकम 100 से बढ़कर 120 हो गई, इनकम 100 से बढ़कर 120 हो गई, तो अब क्या करें? तो यही अप्रोच दोबारा, यही तरीका दोबारा लगाते हैं, बट उससे पहले यहाँ तो देख ही लेते हैं। ये इनकम अगर बढ़ेगी तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 24। आई थिंक यू वुड ऑल अग्री, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आप दिखा दोगे कि इनकम 120 हो गई है। तो नाउ द फाइट इज कि भैया ये गुड कौन सा खरीदेगा, बताते हैं जी, बताते हैं। अगेन अप्रोच वही यूज़ करेंगे। अगर ये खाली गुड 1 ले ये व्यक्ति, तो 120/2 60 यूनिट आएंगे। खाली गुड 2 लेता है तो 120/5 24 यूनिट आएंगे, मेक सेंस। अब यूटिलिटी फंक्शन में अगर मैं ये वैल्यूज़ डालूँ तो 60 + 0 60, यूटिलिटी फंक्शन में गुड 2 की अगर वैल्यू डालूँ तो 24, सो ऑब्वियसली 60 यूनिट्स, यानी गुड 1 पे ही हिल स्टिक। तो अब इसको मैं शो कैसे कर रहा हूँ वो देख लो बच्चों, ये ऑप्टिमल पॉइंट रहा, ठीक है। तो 120 पर 60, ये रहा आपका एंगल का, ठीक है। अच्छा, बच्चा कहता है यहाँ पे आईसी बना दो, देख थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, मेरे को माफ़ कर दे उसके लिए भाई। ये ऐसे बनेगा 60 और ये 60, ठीक है। ये ऑप्टिमलिटी होगी। ऑरेंज आईसीज है, ब्लैक जो है वो बजट लाइन है। अच्छा, बच्चा कहता है एंगल कर बना दिया, बढ़िया है। व्हाट अबाउट आईओसी? बेटे इस पे एक्स एक्सिस पूरा इनकम ऑफर कर्व है। बच्चा कहता है कैसे? क्योंकि तूने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, 1 for 1 है फंक्शन, तो जिसका गुड का प्राइस किसका कम है, गुड 1 का, हमेशा गुड 1 ही खरीदेगा। इनकम ऑफर करके है लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जब उसने खरीदना ही गुड 1 है और एक्स एक्सिस पे गुड 1 है, तो जितना भी ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि खरीदना ही गुड 1 है, जो भी इक्विलिब्रियम होगा वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, और लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम इस इनकम ऑफर कर्व, सो ये पूरा एक्स एक्सिस ही आपका इनकम ऑफर कर्व रहेगा। अब इस केस में जरा एक ट्विस्ट ले आते हैं मेरे बच्चे। चलिए गाइस, तो अब हम ना यूटिलिटी फंक्शन को चेंज कर देते हैं। व्हाट इफ अगर ये 1 for 1 ना होता, सपोज ये होता है x1 + 2x2, तो नो प्रॉब्लम बेटा। ये फंक्शंस कैसे बनते हैं ऑब्वियसली मैंने आपको चैप्टर 5 पे सिखाया हुआ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस केस में सपोज वही इनकम 100 है, प्राइस ऑफ x 2 है, प्राइस ऑफ y 5 है, तो अगर खाली गुड 1 लेंगे आप तो 50 यूनिट्स, खाली गुड 2 लेंगे तो 20 यूनिट्स। आई थिंक दैट मेक सेंस। अब अगर आप यूटिलिटी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो फंक्शन में डाला, फंक्शन ये है माइंडेड, सो +0 50 खाली गुड 1 अगर ले रहे हैं तो, अगर खाली गुड 2 ले रहे हैं तो 0 + 2 × 20 40, स्टिल 50 इज़ मोर देन 40। तो आप अब अगर इसका डायग्राम बनाते हो बेटा, ये आपकी बजट लाइन 50 20 50, इनकम 100, ठीक है। आईसी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, 20 20 50 50, सॉरी फॉर दिस मैस। अब सपोज अगेन इनकम बढ़कर 120 हो गई, तो अब बजट लाइन कैसे बनती है आपके? ऐसे ये हो जाता 24, ये हो जाता 60, पर ऑप्टिमलिटी तो फिर भी यही रहती है ना बेटा। सो ये अब आप दिखा रहे हो कि इनकम बढ़ गई, और ये हो गया आपका एंगल का, और ये पूरा हो गया आपका इनकम ऑफर का। अब एक और कमाल की चीज़ बता देता हूँ बेटा तुम लोगों को, वो क्या है? अगेन परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड 1। आप देख लो, तो ये कितना है 20%,
ये भी कितना है 20%। तो बच्चा कहता है सर ये आप हर उसमें क्यों कर रहे हो, क्या यूज़ है इसका? तो बेटा अब जब रीडिंग्स पढ़ोगे ना तो एक टॉपिक आएगा होमोथेटिक प्रेफरेंस। तो होमोथेटिक प्रेफरेंस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है और कॉफ डगलस भी है। सर कैसे? क्योंकि होमोथेटिक प्रेफरेंस वो होता है बच्चों जहाँ पर होमोथेटिक प्रेफरेंस वो होता है बच्चों जहाँ पर परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। एक थ्योरी टॉपिक और है बेटा, वो भी करा देता हूँ, और तो फिर इनकम ऑफ अ कर्व एंगल कर्व आपके बराबर हो जाएंगे। सपोज ये एक नॉर्मल मैंने बजट लाइन बनाई, ये था इंडिफरेंस का IC1 E1 X1, ये था आपका X1 और ये था आपका इनकम M1। इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन शिफ्ट कर गई। सपोज गुड इन्फीरियर है, गुड वन इन्फीरियर है, तो आपको पता है गुड वन अगर इन्फीरियर है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, राइट? सो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये है आपका एंगल कर्व। अब तक वो अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा था, अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसके अंदर ना बुक जो है IOC कर्व नहीं बनाती है या इनकम कंजम्पशन कर्व नहीं बनाती है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें बड़े लेवल की कुछ किताबों में, बड़े से मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबों में, इसको एक पर्टिकुलर एपिकुलर शेप दी गई है जिसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग या इनवर्स एस शेप IOC। वेल कोई लॉजिक नहीं है। आपकी रीडिंग की अगर मैं बात करूं, आपकी रीडिंग नहीं बनाती इसका डायग्राम IOC का, लेकिन कुछ टीचर आपको कॉलेज में बनवा के दे सकते हैं, विच ऑब्वियसली दे आर राइट एंड देयर पार्ट्स। तो फिर वो ऐसा बना के देंगे बैकवर्ड बेंडिंग या इनवर्स एस शेप। So this is a case of inferior good where we have an angle curve which is downward sloping. Why? Quite understandably because in inferior goods are those जिसमें इनकम बढ़ती है और डिमांड कम हो जाती है। तो इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में वाइंड अप करेंगे जहाँ पर हम सीखेंगे डिमांड कर्व, प्राइस ऑफर कर्व्स एंड इनवर्स डिमांड फंक्शंस।